fruitful meeting the two of you across, the screen. Otherwise, मुलाकात होनी बहुत मुश्किल थी. But tell me about it's really nice, एक झूठी सी love story, which basically is the story of our times, because social media में between real and fake, किसी को difference नहीं पता. What were your reasons to, taking up this particular project? Well, my reasons were very different. I always wanted to work with Mehreen Jabbar, and the script itself, it's so amazing. It's so simple and relatable and real, most importantly, that I couldn't say no to it. It just came out on 30th, and uske baad se I've been watching it. मैं 2 दफा देख चुका हूँ, 2 दफा कर चुका हूँ. तो 18 around 36, 38 हो गए, 2 दफा देख चुका हूँ. So, and I think जिस तरह का content है, जिस तरह की story है, be it पाकिस्तान में बैठा हुआ viewer हो या इंडिया में बैठा हुआ viewer हो, I think उसकी universal appeal है. I think everyone can relate to it. एक लड़का भी relate करता है, एक माँ भी relate कर सकती है, एक वालिद का character, जिस तरह एक जो father figure जो होता है, वो भी relate कर सकते हैं. So I think that's the beauty. What about you, Madiha? Hi, Puja. Thank you for having me. And exactly, as Bilal said, bilkul yahi wali baat hai. It's pretty universal. And how the story has been put by Umaira Ahmed, and Umaira Ahmed collaborating with Mehreen Jabbar was one of the prime reasons why I wanted to be a part of this project. And it's relatable. It's something, maybe if you have evolved by the end of it, अगर आप अपने एज में जहाँ पे भी हैं, आप इवॉल्व कर चुके हैं, तो आपको रिलेटेबल अगर उस वक्त ना लग रहा होगा, तो आप बोलेंगे, ओ नहीं, जब मैं 15 साल की थी, so this is what I used to do. So this way or that way, you will relate to one of the characters from the project. So I think, these were the 3 reasons. And with Mehreen Jabbar, I've been following her work. I'm a huge consumer of content, from Pakistan, and I've liked how she's keeps evolving, There's always something that's very relevant, latest, and it resonates with, you. And social media, आजकल तो सब social media पे हैं. Fake profiles तो उनकी गिनती में छोड़ ही दो. But, also as two young people, what is your take on social media? Because I was speaking to young actors here who kept saying social media पे इतना stress है. कभी-कभी हम भूल जाते हैं, हमें acting भी करनी होती है. It's all about being seen, what you're doing, being watched. What is your take as two young actors? Well, I agree. Social media पे stress तो बहुत ज़्यादा है, और मैं वो stress को अपनी ज़िंदगी से कम कर चुका हूँ. And because मुझसे ये नहीं होता है that मैं daily stories डालूँ and daily. ये खा रहा हूँ मैं, जिम में ये किया मैंने, अब मैं इससे मिला. I don't judge anyone, but I just can't do this. मेरे साथ नहीं होता that daily updates do, and then if I have to upload a picture, so उस picture को upload करने के लिए भी मुझे caption को सोचने के लिए अक्सर आधा घंटा लग जाता है. To avoid that, वो बड़ा stressful period होता है. So, and I think मैंने social media को कभी undermine भी नहीं किया. I think it's an amazing platform for you to be there for your fans. They can know you, you can know them, you can interact with them. But otherwise, I don't take it very seriously. I'm not that active as well. So, and बड़ी खतरनाक जगह है social media. I agree with you. What about you, Madiha? I don't know. I think because अभी जब हम लोग promotions का पहला run हम लोग का था, तो उसके अंदर बार-बार इतने सारे लोगों ने मुझसे बोला, और बिलाल भी, because बिलाल is the same, तो वो उतना post नहीं करता. तो मैंने कहा ये तो बड़ा लोग पूछ रहे हैं, तो कुछ तो करना है. So I went overboard. So every single day I was posting 10 pictures, and bloody no comments were coming, and I was like, what is happening? I'm just so not text because ये क्या करना चाहिए? And then somebody told me एक वक्त में एक picture लगाते हैं और इतने बजे लगाते हैं और इतने बजे नहीं लगाते, because जो आपका graph है. And I was like, oh my God, people are thinking like insane. I can't do this. But having said that, I'll be honest, because some people are actually they make a career out of it. So, I mean, if you use it properly, if you're smart about it, then you can do so much with it. But then, yes, it's a toxic space, because then there's so much of criticism coming your way. It could add to cyberbullying also. So you have to be careful where you want to put yourself in all of that. But man, it's difficult for me. I find it difficult. Either this or that. Kabhi kuch na lagao, kabhi lagao, to bhai don't. So for me, it's like that. I so agree with you. Mehreen Jabbar की जैसे मैं बात कर रही थी, उनके जो narratives हैं, I mean, they resonate with everyone. Also, as two young actors, do you feel also the content in Pakistan is evolving? Recently, we saw Chudails, which I wouldn't have imagined to see. Like, I belong to the Dhoop Kinare generation, and I thought that story was way ahead of its time back in the 80s. But बीच में वो दौर भी आया जहाँ वो ही शौहर, बहू और सास के झगड़े, and वैसे. But now that door is also changing because there's more content coming. You think people are now getting receptive because
since we are all consuming content from across the world? नहीं बिल्कुल आई थिंक पाकिस्तान में जिस तरह भी आपने प्रोजेक्ट्स का नाम लिया धूप की दीवार धूप की दीवार किनारे 80s किनारे एग्जैक्टली सॉरी धूप किनारे एंड अल्फा ब्रावो चार्ली ये सुनहरे दिन ये पाकिस्तान के वो प्लेज रहे हैं जो कि अपने टाइम से आगे की कहानी शायद बताते थे और बीच में यस यू राइट ऐसा एक पैच आया था बीच में दैट वो टिपिकल सास बहू एलिमेंट को हम बहुत ज्यादा सेल कर रहे थे बट अब आई थिंक कंटेंट बदल रहा है वक्त बदल रहा है पाकिस्तानी व्यूअर्स की अगर मैं बात करूं दे वांट टू सी समथिंग एल्स दे वांट टू सी समथिंग न्यू समथिंग जो उनको कुछ सिखा के जाए जो कुछ सीख सके उससे एंटरटेनमेंट भी मिल सके उनको एंड उस चीज को टारगेट करते हुए डिफरेंट कंटेंट भी बन रहे हैं जो कि अब क्योंकि ऑब्वियसली लोग अगर जिस तरह कंटेंट देखना चाहेंगे उस तरह कंटेंट बनता है इट इन पाकिस्तान और इन इंडिया फॉर दैट मैटर तो ये लोगों की प्रेफरेंस पे बहुत डिपेंड करता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली लोगों की प्रेफरेंस बदली है लोगों को वो फैक्टर चाहिए कि यार हमें भी एक्साइट और या फिर शौक मिले या फिर कोई नई चीज हो हमने ऐसा कुछ ना देखा हो तो अगर आपको वो ऑडियंस के पैरामीटर्स फिट करने के लिए ऑब्वियसली गेम अप हुआ है पहले से मदिया आप क्या कहेंगे Puja, as we've all heard, like how people would say that it's important for a person to accept the stage and the age that they are in life to live properly. So I think for the audiences also, आप सही कह रही हैं कि receptive तो हो ही गई हैं, लेकिन जहाँ पे भी कहीं पे भी थोड़ा सा stagnant आप होते हैं, तो वहाँ पे आप creativity को रोक रहे हैं. So the idea of telling a creative individual to do this or that, it's just, I mean, it sounds wrong. गलत बात है ना कि somebody is wanting to tell a story, then as the audience, you may decide to either watch it or not. So as for that, I think the audiences also need to sort of up their game and understand कि अब दुनिया इतनी different artists से भरी हुई है और different तरह के आपको platforms मिल गए हैं. तो अगर आपको TV पे चीज नहीं पसंद आती है, तो just instead of saying ये होना ही नहीं चाहिए, rather go someplace else and watch something else because you have so many options. So I think, yes, receptive हो भी रही है, नहीं भी हो रही है. There's this level where we have to figure out कि हमें किस तरह से करना है. But as a creative individual, I think liberty मिल जानी चाहिए कि आप आराम से अपना काम करें, keeping other people's sentiments in mind, of course, that intact. But otherwise होना चाहिए कि आप आराम से करें काम. और आप दोनों को लगता है OTT प्लेटफॉर्म के आने से नए टैलेंट और नई कहानियों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है? You know, जो पहले नहीं, because you get restricted with cinema, sometimes you get restricted by TV. और जैसे हिंदुस्तान में ये demarcation होता था TV actors और film actors के, because film industry सोचती थी TV actors बहुत ऐसी तरह की acting करते हैं. But now everybody seems to be doing everything together. So do you think OTT kind of helped that, and do you feel the same would be reflecting in your industry as well? बिल्कुल OTT ने यहाँ पे एक्टर्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज दी है अगर मैं यहाँ पे अपनी टीम के बिहाफ पे बात करूँ पाकिस्तानी टीम के बिहाफ पे एक्टर्स को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक्टर्स डायरेक्टर्स राइटर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है प्लेटफॉर्म मिला है टू एक्सप्रेस देयर व्हाटएवर दे यू नो दे वांट टू शो पीपल और एक क्रिएटिव लिबर्टी उनको मिली है और इस तरह के हालांकि मेरा कैरेक्टर इट्स वेरी सिंपल कराची आई सिंपल से लड़का है बट वो जो रूम है जो परफॉर्म करने का जो स्क्रीन प्ले है जिस तरह की कहानी है वो यूजुअली इस तरह की ड्रामों में नहीं बनती है इस तरह की तो वो OTT वजह से वो आई थिंक वो प्लेटफॉर्म मिलता है तभी जाके वो अपॉर्चुनिटीज को आप अपील कर सकते हैं सो या दैट्स ट्रू कि वो उससे बहुत फर्क पड़ा है बी डायरेक्टर का काम हो राइटर का काम हो आपके एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्टर्स की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं कि ये प्रोजेक्ट भी है ये कैरेक्टर भी है ये भी है सो ऑप्शंस बढ़ गए मदिया मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी बिकॉज मैंने बहुत शोज जैसे देखे मैंने धूप किनारे का जिक्र किया फिल्म आई थी बोल बेहद भी थी एक विमेन का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था बट ऑन दैट जैसे केक भी फिल्म वेरी स्ट्रांग वुमेन बट ऑन द अदर हैंड थोड़ा औरतों को वो स्टीरियोटाइप भी हुआ होता है ना रिग्रेसिव जैसे दिखाते बट डू यू फील नाउ स्ट्रांग नैरेटिव्स आर बीइंग रिटन फॉर वुमेन आई मीन वेयर दे कैन टेक द लीड and where you know they can drive a project on their own shoulders? Well, I mean that's a good idea, but then again, because it's again creative work, why would you want it to always be one thing or the other? मैं तो चाहूंगी कि अगर औरतों के लिए अच्छा लिखा जा रहा है तो फिर मर्दों के लिए भी अच्छा लिखा जाए क्यों नहीं प्रोटैगनिस्ट हो सकता क्यों एक औरत एक एंटैगनिस्ट नहीं हो सकती You should allow that to happen, but then as producers, as writers, आप दोनों कंटेंट लिखिए ना आप मर्दों के लिए भी लिखिए कि मर्द ही कहानी लेके चलेगा कहीं औरत
दोनों लेके चल रहे हैं. सो आई थिंक ये होना चाहिए. लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो जो प्रोसेस में हम जहां पहुंचे, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, वेयर एवरीथिंग इज हैपनिंग, व्हिच इज इनक्रेडिबल. बीच में एक स्टैग्नेंट दौर आया था जहां पे एक तरह की चीजें बार बार बन रही थी, अभी भी वो बन रही हैं, लेकिन अब दूसरा काम भी हो रहा है. सो वी एटलीस्ट हैव दैट मॉडरेशन. So towards the end of it, hopefully, अब हमारे पास different तरह के taste, flavors आएंगे on screen or different platforms. So yeah, I think so. You know, that's what I meant, because now women projects, like better stories are being written for women. नहीं तो वो ही होता, जैसे यहाँ भी था, she just becomes an accessory for a project that's driven by a man. और जो जैसे होता है हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, हमारे हमेशा औरतों के किरदार बड़े जबरदस्त लिखे जाते थे और आज तक लिखे जाते हैं. लेकिन अब जो चेंज आया है, जो व्हाट आई सी फ्रॉम माय जनरेशन, मैंने जो देखा है वो ये है कि अब मर्दों के भी बहुत ही मजबूत किरदार लिखे जा रहे हैं, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. कि एक चीज नहीं हो सकती. ये तो बड़ी एक अजीब सी कॉन्वर्सेशन फिर हो जाएगी कि भाई क्रिएटिव अगर आपको लिबर्टी मिलती है सिर्फ औरत के बारे में. नहीं. So ऐसा नहीं. No, because we are seeing that in India as well, because very strong roles, characters and narratives are being written for the women too. But I agree, they should be also be written by men, that do not have to be portrayed in a certain way. किसी को ना दे, सबको. मतलब एक बच्चे का किरदार भी कहानी को रन कर सकता है, तो एक लड़के का भी, एक लड़की का भी. It's perfectly fine and it should be like that. So what is that one change you actually want to see in the industry? जहाँ आप हैं, आप क्या दोनों as actors, what is that one change you're looking for? I'm sorry, मैं आपकी बात नहीं सुन पाई, distort हुई. I said, what is the one change you as two young actors are looking for in the industry? You want to see going forward, क्या change आए? I think for me, जो अभी मदिया ने बात बोली है कि हमारे यहाँ कैरेक्टर्स मेनली जो फीमेल सेंट्रिक स्टोरीज होती हैं ज्यादातर, और ऐसा नहीं है कि इसमें औरत की कहानी को ज्यादा नहीं दिखाया जाता. सो ये एक चेंज पिछले कुछ साल से, 1-2 साल से मैंने अपने सामने देखा है, दैट अब मेल सेंट्रिक प्लेस भी बन रहे हैं. अब ऐसे प्लेस भी बन रहे हैं जो कि मेल कैरेक्टर की जर्नी और उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट शेड करते हैं. सो आई थिंक ये एक चेंज ऐसा था जो मैं चाहता था कि अगर कहीं आप औरत लड़की की जर्नी, उसको उसके बारे में कहानी बता रहे हैं, तो साथ साथ हमें ऐसी प्लेस भी बनाने चाहिए जो कि एक मेल कैरेक्टर की जर्नी के ऊपर भी बात करती है. तो आई थिंक वो अब इस तरह की प्लेस बनने लगे हैं. ये एक वाहिद ऐसी चीज थी जो मैं हमेशा चाहता था कि ये होनी चाहिए, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत प्लेस किए हैं जिसमें मैं बज़ाहिर आई एम जस्ट प्लेइंग अ हीरो, बट हीरो है बस, उसका कोई ग्राफ नहीं है, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज द होल स्टोरी इज अबाउट फीमेल सेंट्रिक, फीमेल कैरेक्टर. सो वो चीज ऐसी चीज थी जो मैं आज से 2-3 साल पहले चाहता था दैट चेंज आए, बट लकीली अब वो चेंज आ गया है. एंड हमारे लोकल जो पाकिस्तानी टेलीविजन के लिए भी जो प्लेस बन रहे होते हैं, उसमें काफी ऐसे प्लेस हैं जो कि बन रहे होते हैं मेल कैरेक्टर को देखते हुए. सो दैट्स द ओनली थिंग. मैं बिलाल की बात को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए बताऊंगी कि जैसे नाउ ही इज सेइंग दैट चेंज हैज ऑलरेडी कम अबाउट. He was expecting it to happen, it is happening, and what I was expecting to see happen is also happening. मैं चाहती हूँ कि ensemble cast होती है आपकी, कि आप जब एक casting पे जाते हैं तो आप देखिए कि ऐसे इस तरह की कहानी हो जहाँ पे हीरो हीरोइन की सिर्फ कहानी ना हो, सब हो. अगर सब हैं तो हैं, ये नहीं कि फ्रेम में खड़े हैं तो भाई वो खड़े हुए हैं क्योंकि वो बस खड़े हुए हैं. सो जैसे महीन जब्बार ने इसमें क्या है, हीरो हीरोइन हैं, बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है, लेकिन जब उनके साथ और लोग आते हैं, उनकी मजबूती ज़ाहिरी तौर पे आपको नजर आती है कि वो पूरा एक किरदार है, उनकी बैक स्टोरी है, दे आर वेल राउंडेड पर्सपेक्टिव के साथ वो आ रहे हैं. तो वो अगर हर तरह के फोरम्स पे आपको नजर आए तो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो बड़ी दिलचस्पी आती है. अदरवाइज वो वन ट्रैक में टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट यू लाइक ओ माय गॉड, इसी एक आदमी की कहानी सुन सुन के दिलचस्प हो सकती है. आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम दैट, बट जस्ट द आइडिया ऑफ हैविंग सो मेनी पीपल कम टुगेदर, इफ दैट हैपेंस मोर ऑफन तो बड़ा मजा आता है. चाहे मूवीज में हो, चाहे आपकी वेब सीरीज में हो, चाहे आपके टेलीविजन ड्रामाज में हो, इवन टेलीफिल्म में अगर एक ज्यादा लोगों की वो आती है ना विद मजबूती के साथ. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू सी मोर ऑन टीवी एंड अदरवाइज आल्सो. Okay. So मैं ये पूछना चाह रही थी, could you both relate to your characters at any level? Are you anything like your two characters? The only similarity between me and my character is like both are from Karachi. हम तो कराची हैं. तो वो जो कराची का जो टिपिकल कराचीआइट का बोलने का तरीका होता है, तो वो एक सिमिलर है. अदरवाइज आई थिंक मेरा कैरेक्टर, मैं अब जब देख रहा था मैं एक चीज सोच रहा था दैट व्हाइल परफॉर्मिंग इट मुझे रियलाइज नहीं हुआ दैट माय कैरेक्टर इज सो सेंसिटिव, एंड वो जिस तरह
स्क्रीन का बड़ा इमोशनल और सेंसिटिव एक बॉय का कैरेक्टर लगेगा एंड वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस एफर्ट भी थी बट वो जिस तरह आ रहा था आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट सो आई थिंक आई कुड रिलेट टू दैट बिकॉज मैं भी अपनी रियल लाइफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इमोशनल सेंसिटिव हूँ एंड थोड़ा कराची का लड़का भी हूँ सो ये 3 कुछ चीजें थी जिसको लेके आई कुड रिलेट टू I think I was Salma when I was 17, so I could relate. I can relate to Salma if I were to go back in time and become my 17-year-old self. तो मेरे अंदर वो वाली मुझे वो चीजें याद है पूरी मैं सलमा नहीं थी खुदा के वास्ते मुझे नहीं बोलना because Salma is pretty like you know insecurity का बड़ा एक मजमुआ है और जो उसकी ख्वाब में अल्लाह माफ करे what is she even thinking? No. I can relate to Salma as the kind of way she is, the way she conducts herself was pretty much me when I was 17 years old. और काफी अरसा गुजर चुका है उसको तो You don't look a day older than 7. जी You don't look a day older than 17. And आखिरकार मैं ये पूछना चाहूंगी कि इंडियन स्टार्स में से आप कौन सी एक फिल्म अगर करना चाहें और किसके साथ करना चाहेंगे? I think for me, it would be unfair to name any specific. I've grown up watching Indian films, and till date, I watch a lot of Indian content, be it web shows or Indian films. And मेरे लिए inspiration, it's an ongoing process. मैं हर अच्छे actor को देख के inspire हो रहा होता हूँ और कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ. So I think it would be unfair to name any specific movie or specific actor. I would want to work with all good actors. एक हीरोइन का तो नाम दो ना आपके साथ फिर फिल्म बना देंगे. अभी मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे वो देखी है सूटेबल बॉय एंड आन्या मनकताला. मुझे तब्बू हमेशा से वो मुझे बहुत पसंद है. मैंने हैदर देखी थी बी इट हैदर और सो मेनी मूवीज उनकी. सो या तब्बू अगर कोई इस तरह का स्क्रीन प्ले बना कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी बनी सो आई वुड लव टू वर्क विद हर. शी इज जस्ट टू गुड. मदिया आपके लिए? I don't know. It's difficult because जब भी मुझसे कोई पूछता है मैं सारे नाम जब लेना शुरू करती हूँ तो उनको मैं पागल लग रही होती हूँ क्योंकि मैं लाइन लगा के बैठ जाती हूँ. क्या नाम दे दो एक का शायद आपकी मुराद पूरी कर दें. I can only take one name because I think he goes crazy when he goes into a character and that's Saif Ali Khan. I really like his work and he's very dignified also. Awesome. Lastly, all the very best. ये लॉकडाउन कैसे रहा है आप दोनों के लिए? एक्टर्स तो हमेशा पब्लिक आई में होते हैं ना और अभी हम लोग सब कैद हैं तो कैसा रहा है लॉकडाउन आप दोनों के लिए? वेल लॉकडाउन यहाँ पे तो 6-7 महीने पहले काफी सिचुएशन इजी हो गई थी यहाँ पे एंड I've been working for last 6-7 months. Although precautions लेते रहे हैं मगर काम भी करते रहे हैं. So it's just been normal for me. बस मास्क पहने ग्लव्स पहने थोड़ा सा एहतियात किया डिस्टेंस रखा है बाकी एक्टिंग करते रहे हम अपनी. One word, frustrating for me. I just did not want to sit home. I wanted to get out and I did a month and a half ago. तो मुझे तो काफी लंबा अरसा मैं घर में ऐसे बंद थी जैसे पता नहीं कुछ हो गया है जो हो गया था. But it was frustrating. Anyways, all the very best. Lovely chatting with you and good job and hoping to see more work from the two of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye.